Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Uh, सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. Today is our lecture number 26 and the topic of today's lecture is Lagrange interpolation formula. First of all, we will derive the Lagrange interpolation formula to find the unknown function in the form of polynomial. And like Newton's divided difference interpolation formula, this formula is also used when the interpolated values are not equally distributed. So let we start. Let y is equal to f of x be a real valued continuous function defined in an interval a b. So this is our supposition that the function which we are going to construct is a real valued continuous function. Let x naught, x1, x2, xn be n plus 1 distinct points which are not necessarily equally spaced. ये जो आपके पॉइंट्स x नॉट, x1, x2, xn है, इनका इक्वली स्पेस होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में मेथड जो है वो वर्क करता है. एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस आर y नॉट, y1 एंड yn. फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ बल्कि उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज आपको गिवन है. You have to find the function. So you can use the Lagrange's interpolation formula. But first we will derive the formula. Since n plus 1 values of the function are given corresponding to n plus 1 values of the independent variable x, we can represent the function as a polynomial in x of degree n. So this is our supposition that as the values of the function are given on n plus 1 independent values of x, so we can construct a polynomial function of degree n. So let we suppose the proposed polynomial as y is equal to f of x, that is equal to a naught into x minus x1, x minus x2, x minus x3, x minus xn plus a1, x minus x naught, x minus x2, x minus x3 up to so on x minus xn plus a2 into x minus x naught, x minus x1, x minus x3 up to so on x minus xn plus so on an x minus x naught, x minus x1 up to so on x minus xn minus 1. So the structure of the polynomial, you can see that in first term x naught is missing, in second term x1 is missing, in third term x2 is missing, and so on. So if you can see here, after multiplying these n factors you will get a polynomial of degree n. हर टर्म के अंदर आप देख सकते हैं जो आपके पावर होगी x की वो n होगी. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. सो ये हमारा एक प्रपोज स्ट्रक्चर है कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का. सो ये हमने एक जो है ना पॉलिनोमियल हमने सपोज कर लिया.
अब इसमें जो a0, a1, a2, an ये हमारे अननोन कोफिशिएंट्स हैं जिनको हम डिटरमिन करेंगे। Here a0, a1, a2 up to so on an are constants to be determined. So इनको हम कैसे डिटरमिन करेंगे? सबसे पहले हम x को x0 पुट करेंगे and we will find the value of a0. So we put x is equal to x0 in equation number 1. So when you put x equal to x0, so this vector will be 0 and it will vanish all the term. Similarly ये टर्म भी खत्म हो जाएगी, तो अगली सारी टर्म्स आपकी खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, सिर्फ पहली टर्म आपकी बच जाएगी क्योंकि उसके अंदर x माइनस एक्स नॉट का फैक्टर मौजूद नहीं है। तो ये हम x को x नॉट हमने पुट कर दिया, तो सिर्फ एक जो टर्म है वो आपके पास बच गई, ये नॉट वाली, एंड दिस इज इक्वल टू y नॉट बिकॉज एट x नॉट y इज इक्वल टू y नॉट। सो y नॉट इज इक्वल टू a नॉट into x naught minus x1 into x naught minus x2 into x naught minus x3 up to so on x naught minus xn। सो इस इन तमाम फैक्टर्स को आप डिवाइड कर दें इस साइड पे, तो यू विल गेट a नॉट। तो a नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, y नॉट ओवर, ये हम इस स्लाइड पे देख लेते हैं, a नॉट इज y नॉट ओवर x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x naught minus x3 and so on x naught minus xn। Similarly, put x is equal to x1 in equation number 1। तो आपके जो सेकंड टर्म है a1 वाली वो सरवाइव करेगी, बाकी तमाम टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, बिकॉज उन सब के अंदर x माइनस x1 वाला फैक्टर पड़ा हुआ है। तो जब आप x को x1 पुट करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इन तमाम को ज़ीरो कर देगा। इसी तरह ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो इस तरह तमाम बाकी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये सेकंड टर्म जो है ना ये आपके पास सर्वाइव करेगी। सो पुट x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन नंबर 1, यू गेट y1 इक्वल टू f ऑफ x1 is equal to a1 into x1 minus x naught, x1 minus x2, x1 minus x3, x1 minus xn। You can see that all the terms are constant, x naught, x1, x2, x3, xn ये तमाम constant हैं। इसी तरह y1 भी constant है, तो आपको इस constant a1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आप इन तमाम फैक्टर्स को दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, तो you will get a1 is equal to y1 over x1 minus x naught, x1 minus x2, x1 minus x3 up to so on x1 minus xn। तो ये तरीका है, इस तरह से आप तमाम कोफिशिएंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप x की जगह x2 पुट करते हैं तो आपको ये फंक्शन मिलेगा f ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू y2, और राइट साइड आपकी क्या होगी, a2 इंटू x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 आप तो सो x2 माइनस xn। तो यहाँ से a2 आप फाइंड कर सकते हैं, आप ये तमाम फैक्टर दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो यू विल गेट a2 and that is equal to y2 over x2 minus x naught, x2 minus x1, x2 minus x3, x2 minus xn एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आप a3 फाइंड कर सकते हैं, a4 फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप a0, a1, a2 इनका स्ट्रक्चर देखें तो a0 के अंदर यहाँ पर क्या है, y0 आ रहा है, और नीचे जो आपके तमाम फैक्टर्स हैं उनमें जो आपका फर्स्ट फैक्टर है दैट इज x0, और राइट साइड पे x0 के अलावा तमाम फैक्टर आ रहे हैं, तमाम वैल्यूज आ रही हैं x की, यानी x0 आपका फर्स्ट टर्म है और जो बाकी टर्म्स हैं वो वन बाय वन रिपीट हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं, x1 then x2 then x3 एंड देन xn। सिमिलरली a1 के अंदर आप देख सकते हैं y1 ऊपर आ रहा है, नीचे जो आपके पास पहली टर्म है वो x1 है तमाम फैक्टर्स के अंदर,
और जो सेकंड टर्म है वो वेरी कर रही है, एक्स नॉट देन एक्स टू, एक्स वन वाला फैक्टर नहीं आया, एक्स टू देन एक्स थ्री एंड देन एक्स एन। तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो व्हाट विल बी ए एन। ए एन आपका कैसे आएगा, जब आप एक्स को एक्स एन पुट करेंगे you will get yn, and on right hand side it will be an into xn minus x naught, xn minus x1, xn minus x2 and xn minus xn minus 1। तो xn माइनस xn वाला फैक्टर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ए एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड की जा सकती है, दैट विल बी वाई एन ओवर एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स टू, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की जो है ना वो तरतीब आपको नज़र आ रही है कि जब आपके पास यहाँ पर इंडेक्स टू होता है तो यहाँ पर भी वाई के साथ वही इंडेक्स आता है, और वही इंडेक्स यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है हर फैक्टर के अंदर एक्स के साथ वही इंडेक्स आता है, और बाकी जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो एन तक सारे वेरी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो वाला फैक्टर राइट साइड पे नहीं आता जो आपकी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इधर इंडेक्स एन है तो यहाँ पर भी इंडेक्स क्या एन है। अब यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स एन है हर टर्म के अंदर, और जो सेकंड टर्म है वो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, और कहाँ तक वेरी करेगी, एक्स एन माइनस वन तक। तो ये आपने तमाम वो कोफिशिएंट्स डिटरमिन कर लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे। तो ये आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो यू विल गेट द फंक्शन y is equal to f of x that is equal to x minus x naught, sorry, x minus x1, x minus x2 up to so on x minus xn, and denominator is x naught minus x1, x naught minus x2, x naught minus xn, and the function is f of x naught। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर जो आपके पास x एज अ वेरिएबल रहेगा, लेकिन जब आप पहली टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा, या इसको वाई नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन एन आएगा, यानी जीरो नहीं आएगा, एक्स नॉट नहीं आएगा, वो एक्स नॉट नीचे आएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू। तो जिस तरह के फैक्टर ऊपर हैं बिल्कुल उसी तरह के फैक्टर नीचे भी हैं, सिर्फ आपने एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिख दिए, ठीक है। तो ये पहली टर्म इस तरह की होगी। अब सेकेंड टर्म क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू। तो यहाँ पर x माइनस एक्स वन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर x नॉट मिसिंग था, इसमें x वन मिसिंग है, सिमिलरली नेक्स्ट में x टू मिसिंग होगा। तो जो मिसिंग होगा वो नीचे आपके पास x की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर वन मिसिंग था तो x वन x की जगह पे आ गया, बाकी सारे फैक्टर उसी तरह वेरी कर रहे हैं, और यहाँ पर फंक्शन आएगा y1 या f ऑफ x1। तो इसी को अगर हम जर्नलाइज करें तो दिस विल कंटिन्यू एंड द लास्ट टर्म विल बी x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स एन माइनस वन, क्योंकि आपके पास आप कौन सी टर्म है, nth टर्म है, तो यहाँ पर जो है वो n आएगा, n वाली जो टर्म है वो ऊपर xn नहीं आएगा, नीचे जो है ना xn आपके पास आ जाएगा, तो xn माइनस xn x नॉट। तो दिस n प्लस वन टर्म, तो n प्लस वन टर्म के अंदर xn जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर आता है और न्यूमरेटर के अंदर नहीं आता। दिस इज द जनरल फार्मूला विच इज कॉल्ड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से आप पॉलिनोमियल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप x को एज इट इज छोड़ दें, उसकी वैल्यू पुट ना करें, तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और आप पर्टिकुलर वैल्यू भी किसी पॉइंट पे अगर रिक्वायर्ड हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको x दिया गया हो, आप यहाँ पे पुट कर दें, तो आपकी राइट हैंड साइड पे तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। दोनों काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं और पर्टिकुलर वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। तो दिस इज कॉल्ड लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। दिस इज वेरी सिंपल, बट इसको अगर आप देखें यहाँ से, तो जब आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो हो जाएगी।
तो इस लिहाज से मतलब ये जो है फार्मूला बेटर वर्क करता है, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है अगर आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा हों। तो इसी को सामने रखते हुए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अप्लाई Lagrange's इंटरपोलेशन फार्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y corresponding to x is equal to 2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया, एग्जांपल ली है, इसमें हमने 4 वैल्यूज़ ली हैं, 0 1 3 4, ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं -20 -12 -20 -24। दिस इज़ x नॉट, दिस इज़ x1 x2 x3। तो x3 तक आपके पास डाटा अवेलेबल है। अब आपने फार्मूला जो है वो x3 तक जो है वो बनाना है। तो इसमें हमने फंक्शन फाइंड करना है x इज़ इक्वल टू 2। तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए फंक्शन की एट x इज़ इक्वल टू 2। सो सबसे पहले हम इसमें x नॉट लिख देते हैं। x नॉट इज़ 0, x1 इज़ 1, x2 इज़ 3, x3 इज़ 4। व्हाट इज़ y नॉट? y नॉट इज़ -20, या इसको f ऑफ x नॉट भी कह सकते हैं। y1, this is f of x1, this is equal to -12, y2, this is f of x2, and this is equal to -20, and y3, this is f of x3, and it is equal to -24। तो ये आपको डाटा जो दिया हुआ है वो आपने सारा यहाँ पर लिख लिया। अब आप फार्मूला लिखेंगे। द Lagrange's इंटरपोलेशन फार्मूला इज y is equal to f of x, it is equal to x minus x naught, x minus x, सॉरी x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। तो अब आपके पास चूँकि x3 तक ही डाटा अवेलेबल है, इसलिए आप जो है वो x3 तक ही इसको जो है वो कैरी करेंगे और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट फैक्टर के अंदर अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म के अंदर x नॉट यहाँ पर ऊपर मिसिंग है, वो x नॉट नीचे आ रहा है और यहाँ पर f ऑफ x नॉट है। सेकंड के अंदर x1 ऊपर मिसिंग है, वो x1 इधर आ गया डिनोमिनेटर के अंदर और यहाँ पर f ऑफ x1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर x2 मिसिंग होगा, यहाँ पर x3 मिसिंग होगा। तो ये एक जर्नल स्ट्रक्चर, आपने इसको केयरफुली जो है वो लिखना है। उसके बाद आपने x की वैल्यूज़ अगर आपको दी हुई है तो वो पुट कर दें, अगर नहीं दी हुई तो बाकी तमाम वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंपलीफाई करें और एक पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर चूँकि हमें पर्टिकुलर वैल्यू x की दी हुई है, x इज इक्वल टू 2, तो हम x की जगह जो है वो 2 पुट करते जाएंगे। बाकी x नॉट, x1, x2, x3, f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, ये तमाम वैल्यूज़ हमें जो है वो गिवन है। तो आप सिंपली ये देखें कि एक तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको x गिवन है या नहीं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको x गिवन है तो इट मीन्स के आपने पर्टिकुलर वैल्यू जो है ना फंक्शन की वो फाइंड करनी है। बाकी ये x नॉट, x1, x2, x3, ये जो पहली वैल्यू होगी ये हमेशा x नॉट होगी, सेकंड x1 होगी, थर्ड x2 और फोर्थ x3। तो ये देखें ना, जितनी वैल्यूज आपकी इंक्रीज करती जाएंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 वैल्यूज होती तो ये x नॉट, x1, x2, x3, x4 तक चला जाता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती। तो अगर x5 तक चला जाए तो दैट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये कैलकुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी अगर आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ते जाएं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिवली ये जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो इसके मुकाबले में जो आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है वो ज़्यादा बेटर है कि उसमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। बाकी ये दोनों मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द पॉलिनोमियल फ्रॉम अ गिवन डाटा इवन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दीज टू फार्मूलाज आर वेरी यूजफुल। ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो है वो दोनों फार्मूले काफ़ी यूज़फुल हैं। आप दोनों फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके जो एक्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो। दोनों सूरतों में ये फार्मूलाज आपके वर्क करते हैं। और चाहे आपका एक्स सेंट्रल वैल्यू के करीब है, एंडिंग वैल्यू के करीब है या स्टार्टिंग वैल्यू के करीब है, हर सिचुएशन के अंदर आपको ये मेथड्स जो है वो आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने सिंपली एक्स पुट करना है, बाकी एक्स की तमाम वैल्यूज पुट करनी है और फंक्शन की जो वैल्यूज हैं एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, ये तमाम वैल्यूज आपने पुट करनी है और कैलकुलेटर के ऊपर इसको
आपने सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर ली, x इज 2। ये आपने यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना है, x इज 2, x नॉट इज 1, x x1 इज 1, x2 इज 3 एंड x3 इज 4। तो ये सबसे पहले आप जब वैल्यू पुट करें तो उसके बाद अच्छी तरह इसको वेरीफाई करें आपने तमाम वैल्यूज सही सही अपनी जगह पे अप्लाई की हैं। उसके बाद कैलकुलेटर पे 1 बाय 1 इनको सॉल्व करें। ठीक है, कैलकुलेटर को पहले ही आप 5-6 डिजिट्स तक फिक्स कर लें ताकि उसमें राउंडिंग एरर ना आए। तो बहरहाल इसके बाद आपके कैलकुलेटर वाला काम रह जाता है। तो आपको कैलकुलेटर की एक तो प्रैक्टिस करनी है, इस तरह की 3-4 एग्जांपल्स आप खुद करें तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अब आपने कैलकुलेटर इस पे सॉल्व करें, वन हर टर्म का अलग-अलग आंसर जो है आप सॉल्व करते जाएं और उसके बाद आप इन द एंड तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दें। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो ये होना चाहिए, y इज इक्वल -14। तो ये आप लोगों ने वेरीफाई भी करना है एक दफ़ा कि वाकई यही आंसर आता है, ये नहीं आता। इसी तरह अगर पॉइंट्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, वैल्यूज़ पॉइंट्स की फॉर्म में दी गई हों, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज ये वैल्यूज़ जो हैं वो होल नंबर्स की फॉर्म में हैं, तो उसमें रिलेटिवली जो है मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में अगर वैल्यूज़ हों तो आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। So this is the Lagrange's interpolation formula, and we have learned that we have that how to find the unknown values of the function by using Lagrange's interpolation formula. So hope you understand, and कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर आप देखें, डाटा आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू इज x एंड सेकंड वैल्यू इज y। This is x naught, x1, x2, x3, y naught, y1, y2, y3. That is not equally distributed. So you will use Lagrange's interpolation formula to find the polynomial. पहले क्वेश्चन के अंदर आपने पॉलिनोमियल निकालना है। तो जहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी गई हुई तो आपको ऑब्वियसली पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जहाँ पर x की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है तो उसके ऊपर आप वैल्यू फाइंड करेंगे y की। सिमिलरली यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो 8 के ऊपर आप जो है वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।